Good morning, students. Today's video lecture is in continuation with our earlier two lectures in which we had studied how chromosomes determine sex in Drosophila, which was based on C.B. Bridges' theory, and it stated that the ratio of X chromosomes to autosomes determines sex in Drosophila. Today we are solely going to concern with sex determination in man. As I have briefly told you in our earlier classes, students, that in man, Y chromosome is a potent determiner of sex. So, human karyotype revealed that one pair of chromosomes differ in males and females. You very well know this, that females have two X chromosomes and males have one X and one Y chromosome. This is the picture of a normal human karyotype in which at the bottom you can see two X chromosomes, that is the female karyotype, and at the extreme left hand corner you can see the XY chromosomes, that is the male karyotype. Now students, Klinefelter syndrome. You very well know that persons with Klinefelter syndrome have more than one X chromosome, usually two X chromosomes and one Y chromosome, but they have male genitalia. This proves that Y chromosome, despite the presence of two X chromosomes, Y chromosome, if a single Y chromosome is present, the person is going to become a male. This is the picture of a Klinefelter syndrome karyotype. At the extreme left hand corner, students, you can see that there are two X chromosomes and a single Y chromosome. Now, Turner syndrome. Persons with Turner syndrome usually have a single X chromosome and no Y chromosome. But because there is no Y chromosome, a single X chromosome, that means they have female genitalia. All these are the proofs, students, that how chromosomes determine sex in humans. This is the karyotype of a Turner syndrome. इसमें आप देख सकते हैं कि only one X chromosome is present. Now trisomy. What does trisomy means? That there are three X chromosomes. When there are three X chromosomes and the autosomes are normal, then it results in a female differentiation. Usually that is a normal case, but in some cases underdeveloped secondary sex characteristics, sterility and mental retardation may occur if more than one X chromosome is present. Now students, this is a typical example, that is the Jacob syndrome. Jacob syndrome में क्या होता है? दो Y chromosomes आ गए, X, Y, Y, 2 Y chromosomes. तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमने देखा कि 3 X chromosomes हैं, एक X chromosome अगर एक्स्ट्रा आ गया तो यूजुअली दे आर नॉर्मल, बट इन सम केसेस में अंडर डेवलपमेंट भी हो सकता है. अगर दो Y क्रोमोसोम आ गए तो उसे हम कहते हैं जैकॉब सिंड्रोम, और इसमें मेल्स आर यूजुअली ओवर 6 feet टॉल. नाउ स्टूडेंट्स, कैसे मेल एंड फीमेल सेक्स डिटरमाइन होता है ये आप इस डायग्राम से समझेंगे. दिस इज अ ह्यूमन एम्ब्रियो, 5 से 6 वीक ओल्ड ह्यूमन एम्ब्रियो है, जिसमें हमने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है कि बाय पोटेंशियल गोनाड होता है. बाय पोटेंशियल गोनाड का मतलब होता है इट कैन डेवलप इनटू मेल और फीमेल. अभी इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों में ही डेवलप हो सकता है. अब इस फोटो में स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख लीजिए, एक डक्ट है मुलेरियन डक्ट एंड द अदर डक्ट इज नोन एज वोल्फियन डक्ट. अब आप आइए लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर XX क्रोमोसोम आ जाते हैं तो मुलेरियन डक्ट जो होती है वो ओविडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और वोल्फियन डक्ट डीजेनरेट हो जाएगी.
एम आई वेरी क्लियर? आप 5 to 6 वीक ओल्ड एम्ब्रियो में देखेंगे तो मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं, उसको कहते हैं बायपोटेंशियल गोनाड। इस बायपोटेंशियल गोनाड में अगर XX क्रोमोसोम आ जाता है तो मुलेरियन डक्ट डेवलप हो जाएगी ओविडक्ट में एंड वोल्फियन डक्ट विल डीजेनरेट। अगर XY जीनोटाइप आ जाता है तो Y क्रोमोसोम पे SRY आ जाता है, तो मुलेरियन डक्ट डीजेनरेट होती है और वोल्फियन डक्ट डेवलप हो जाती है। Now students, Y chromosome as we know is smaller than the X chromosome. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि राइट हैंड कॉर्नर में Y chromosome is smaller than X chromosome. So Y chromosome contains far fewer genes than the X chromosome. अब हम Y क्रोमोसोम को डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको इससे पहले की क्लासेस में भी समझाया है कि Y क्रोमोसोम पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट नहीं होता। Y क्रोमोसोम का एक टिपिकल रीजन होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट आर्म ऑफ Y क्रोमोसोम। तो Y क्रोमोसोम का एक जो सूडो ऑटोसोमल रीजन होता है पार, ये वो रीजन है Y क्रोमोसोम का जो X क्रोमोसोम के कुछ रीजन्स के साथ होमोलॉगी शो करता है, और इसीलिए इसमें सिनेप्सिस एंड रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस के दौरान। हमें पता है कि मियोसिस के दौरान स्टूडेंट्स जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही होता है। तो Y क्रोमोसोम के सर्टेन रीजन्स होते हैं जो X क्रोमोसोम के होमोलॉगस होते हैं, उनके बीच में पेयरिंग होती है। So this pairing is very critical to segregation of the X and Y chromosomes during male gametogenesis. Males में जब भी germ cells बनते हैं तो one of the germ cell receives X chromosome and the other one receives Y chromosome, and this segregation occurs because there is homology between certain regions of X and Y chromosomes, and those regions of Y chromosome are known as PAR, pseudo-autosomal regions. This is the diagram of Y chromosome students. आप देख सकते हैं after the pseudo-autosomal region that is PAR you have the SRY gene, the most important SRY gene, and then you have the male specific region of Y chromosome MSY, and SRY मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बता दिया सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है Y क्रोमोसोम का, which is very important. Now TDF, testes determining factor. SRY रीजन में ही एक जीन होता है जो कि एक प्रोटीन को कोड करता है और वो प्रोटीन फिर टेस्टिस फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। और जो मेल डिटरमाइनिंग रीजन होता है, मेल स्पेसिफिक रीजन होता है Y क्रोमोसोम का, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, X ट्रांसपोर्ट रीजन, X डीजेनरेटिव रीजन एंड एम्प्लीकॉनिक रीजन। तो SRY का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है TDF, जिसमें एक टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन होता है, और जो MSY है उसके 3 रीजन्स होते हैं। ये Y क्रोमोसोम के इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं स्टूडेंट्स। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ड्रोसोफिला में क्या होता है, अगर X/A रेशो 1 है तो फीमेल होगा और अगर 0.5 है तो मेल है। हम यहाँ कह रहे हैं अगर सेक्स रेशो की ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो जो रेशो है ऑफ मेलनेस टू फीमेल्स इन ह्यूमंस इज नॉट 1, और जब भी आप सेक्स रेशो की बात करेंगे तो वो होगा प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स रेशो का क्या मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। और सेकेंडरी सेक्स रेशो क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि ईच सेक्स दैट इज बॉर्न, प्रपोर्शन ऑफ ईच सेक्स दैट इज बॉर्न। दैट मीन्स जो प्राइमरी सेक्स रेशो है और जो सेकेंडरी सेक्स रेशो है उनमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, कि वो बताता है प्राइमरी सेक्स रेशो आपको कि कितना प्रपोर्शन ऑफ मेल्स टू फीमेल्स प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं आपकी पॉपुलेशन में।
dosage compensation. Now student, one thing you have to understand कि humans में जो female होती है उसमें 2 X chromosome होते हैं, मेल में एक ही X क्रोमोसोम होता है एंड वी नो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं. तो क्या नंबर ऑफ जीन्स फीमेल में डबल हैं मेल के क्योंकि वहाँ पे 2 X क्रोमोसोम है? नो, strictly no. The number of genes are constant whether it is a male or a female. This is done due to an important phenomena which is known as dosage compensation. डोसेज कॉम्पनसेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, बैलेंस हो जाता है जो एक्स क्रोमोसोम का जीन एक्सप्रेशन है फीमेल्स में और जो मेल्स में है वो बैलेंस हो जाता है. दैट मीन्स फीमेल्स में मेटाबॉलिकली वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है. This inactive X chromosome is highly condensed and can be observed as bar body. You very well know what is bar body. तो bar body क्या है स्टूडेंट्स? एक inactivated X क्रोमोसोम है और ये inactivate इसलिए हुआ है ताकि बैलेंस बना रहे क्योंकि मेल में एक ही X क्रोमोसोम होता है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं डोसेज कॉम्पनसेशन. क्योंकि डोसेज कॉम्पनसेशन केवल फीमेल्स में हो रहा है तो बार बॉडी भी आपको कहाँ दिखाई देगी स्टूडेंट्स? केवल फीमेल्स में. मेल्स में आपको बार बॉडी नहीं दिखाई देगी क्योंकि वहाँ पहले से ही एक ही एक्स क्रोमोसोम है. नाउ व्हाट इज लायन हाइपोथेसिस? लायन हाइपोथेसिस कहता है कि 2 एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल में होते हैं उनमें से कोई सा भी एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो सकता है, कोई सा भी एक एक्स क्रोमोसोम सोमैटिक सेल्स में. दैट इज नेवर फिक्स्ड कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होगा, कोई सा भी हो सकता है. यू कैन वेरी वेल सी कैलिको कैट में कि एक कैट में एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हुआ है, दूसरी में दूसरा इनएक्टिवेट हो गया है. तो मॉर्फोलॉजिकल कलर, स्किन कलर में कुछ चेंजेस आ गई हैं. So this is all about how sex is determined in humans. अगर humans में sex determination की बात आती है स्टूडेंट्स तो हम वहाँ पे dosage compensation को ज़रूर mention करेंगे. And one thing more, you have to give experimental proof कि how sex is determined in humans. क्योंकि humans में autosomes का रोल जो है अभी तक बहुत कम है sex determination में. मेल में ज़रूर ऑटोसोम का एक रोल आता है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. बट आपको ये बताना है कि शुरुआत में जो गोनाड होता है दैट इज बाइपोटेंशियल, उसमें मुलेरियन वॉल्फियन डक्ट दोनों होती हैं और वो कैसे क्रोमोसोम्स पे डिपेंड होके डीजेनरेट होती हैं या ओविडक्ट में मुलेरियन डक्ट डेवलप हो जाती है अगर XX क्रोमोसोम है और अगर XY है तो वॉल्फियन डक्ट वास्ट डिफरेंस बनाएगा. So in the next class, we are going to continue this lesson again.